मिसलीनियस एग्जाम्पल एनसीईआरटी से हम आज कर रहे हैं कंप्लीट एग्जाम्पल एज वेल एज मिसलीनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल नंबरिंग चेंज हो सकती है एज पर ओल्ड बुक और न्यू बुक, बट क्वेश्चन सेम है. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द बुक आई हैव इज एग्जाम्पल 25. साइन एक्स इज 3/5 cos y -12/13. सभी लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे, ऐसा नहीं है एग्जाम्पल है तो लिखेंगे नहीं. वी हैव टू वैल्यूज विद अस along with the information about x and y. X and y both lies in second quadrant, both belongs to second quadrant. That's why the value of sine is positive and cos is negative, as y is belonging in second quadrant, so cos y would be negative only. What we need to find, look at the board, what we need to find sin x plus y. So we can make use of identity sin a plus b, which is nothing but sin a cos b plus cos a sin b. So we have values of sin x and cos x with us, cos y sorry. So from these two value we can get cos x as well as sin y. So using sin x, can I get cos x? Cos x would be plus minus under the root 1 minus sin square x. So plus or minus, we need to decide which sign we need to take. As cos is x is belonging in second quadrant, so cos x would be negative only under the root 1 minus 3/5 whole square. So it would be 5, 25 minus 9, 16, 4 square, 4/5. Clear? And what about sin y? Sin y would be plus minus under the root 1 minus cos square y. And in second quadrant sin must be positive. So ये आपका positive रहेगा. Plus under the root 1 minus 12/13 whole square. So it would be 169 minus 144/13 square or 169. 25 square root लेंगे तो 5/13. Is that fine? So we just simply need to put the values, all four values in this expression. In first we need to put all the values. Therefore first becomes sin x plus y. Sin x is 3/5 cos y minus 12/13 plus cos x minus 4/5 sin y 5/13. So what would be the final answer? कीजिए जल्दी से अपने आप, do it fast. 65 minus 36 minus 20. So the final answer would be 56/65. Clear? खड़े हो जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़े रहो. एग्जाम्पल 26. नेक्स्ट एग्जाम्पल सबने नोट किया ये? फर्स्ट बिकम sin x plus y. Put all the values that we had earlier. सारे पुट कर दिए. एग्जाम्पल 26. स्पीड बढ़ाइए प्लीज. एग्जाम्पल 26. cos 2x cos x by 2, left hand side. cos 2x cos x by 2 minus cos 3x minus cos 3x cos 9x by 2.
सो बच्चों यहाँ पर प्लीज बोर्ड पर ध्यान देंगे, वेन एवर वी हैव आइडेंटिटीज लाइक कॉस ए कॉस बी, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग स्लॉट है आइडेंटिटीज का, बट फॉर दैट वी मस्ट हैव 2 इन द बिगनिंग। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, आप इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, गेट दिस। सो ये आइडेंटिटी मुझे यहाँ पर यूज करनी है। सो इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए मेरे को 2 चाहिए इनके आगे, नहीं है? सो वी फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मोटिव समझ आया इस 2 का? क्यों करा हमने ऐसा? वाई वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2? बिकॉज वी हैव एन आइडेंटिटी 2 cos a cos b, बट हियर वी हैव सिंपली cos a cos b, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। 2 cos, हाँ 1 हो जाएगा, बट हमें 1 नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी को यूज करना है। क्लियर? नाउ विल यूज दिस आइडेंटिटी 2 cos a cos b। चलिए बताते हैं, आप बताइए क्या आएगा। यूज कीजिए 2 cos a cos b में ये आइडेंटिटी क्या आएगा आपके पास? ऐड कर लो बेटा, ऐड करके मुझे बताओ। 2x प्लस एक्स बाई 2 विल बी व्हाट? 5x बाई 2 माइनस सॉरी प्लस cos a माइनस b cos 3x बाई 2। इज इट फाइन? अगेन वी आर यूजिंग इन दिस पार्ट माइनस, जस्ट कीप द टर्म्स इन ब्रैकेट क्योंकि नेगेटिव आया है। a प्लस b, यस 15x बाई 2 प्लस cos 3x प्लस 9x बाई 2 करेंगे। आफ्टर टेकिंग एन एलसीएम you'll have 15x by 2, 3 to the 6 minus, so it would be minus 3x by 2. Cos of minus theta is cos theta, so we can very well cancel out the second and the last term. So देखते हैं क्या होता है। 1 by 2 cos 5x by 2 cos 3x by 2 minus cos 15x by 2 minus cos 3x by 2, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस ही रहेगा। cos of minus theta is cos theta only, but because of this minus, plus minus will get minus, so the second and the last term will get cancelled out. So now we are left with 1 by 2. Now we need to use cos a minus cos b. We need to use cos a minus cos b. Cos a minus cos b. So cos a minus cos b. Anyone? Cos a minus cos b. Minus 2 sin a plus b by 2 and sin a minus. Yes. Cos a minus cos b is minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. So 1 by 2 as it is minus 2 sin, add कीजिए 20x by 4 5x sin minus ऐड होते हैं 4 क्यों ऐड होते? बेटे 5x by 2 plus 15x by 2 by 2 a plus b by 2, ठीक है, so it would ultimately be 2x by 4 ठीक है, which is 5x. Now subtraction a minus b minus 5 by 2 हो जाएगा, minus 10, हाँ minus 5x by 2. So sin of minus theta is minus sin theta. Sin of minus theta is minus sin theta. So this minus and this minus will get neutralized. So final answer would be sin 5x and sin 5x by 2. This is the final answer. Clear?
Sine of minus theta is minus sine theta, minus of that and this will get positive. Next example 27. एग्जाम बैठ जाओ. एग्जाम्पल 27. tan 2a का आइडेंटिटी बताओ सिद्धार्थ. अब यूज कर चुके हैं हम 2 बार. सुहानी. 2 tan x upon 1 minus tan square x. यस, आइडेंटिटीज को लिखते लिखते याद करने की कोशिश करो. चलिए बेटे थोड़ा जल्दी लिखो और ये x लिखो यहाँ पर. ये सब कहाँ है? दिस आई वाज सॉल्विंग. ये रफ पार्ट है. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन. कुछ भी लिख रहे हो? नहीं, वो मैं समझा रही थी. वाई वी वर गेटिंग 5x. 5x कैसे आ रहा था ऐसे. ठीक है. प्रिंटर वाले का कॉल आया था. संध्या प्रिंटर पूछो अभी आ जाऊं कि सुबह आऊं. बुला लीजिए. फोन अपना अनलॉक तो कीजिए, फिर से कॉल कर लूंगा. छोड़ दो, मैं बात कर लूंगी. tan pi by 8. We need to find the value of tan pi by 8. It would be like this question can be like sin pi by 8, cos pi by 8. कुछ भी पूछ सकता है. pi by 8 के साथ how we need to find the value. So we first need to replace this as, can we write let pi by 8 as x. Let pi by 8 as x. So 2x will be, हम इसकी वैल्यू निकालनी है. tan pi by 8 की वैल्यू निकालनी है. So can I take pi by 8 as x? So 2x will be pi by 4 only. So I am going to start this question with tan 2x. That is nothing but 2 tan x over 1 minus tan square x. होगा. मुझे क्या निकालना है? tan x ही तो है मेरा pi by 8. अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? 2 tan pi by 8 1 minus tan square pi by 8 and this would be tan pi by 4. Is this step clear to all of you? 2x की जगह पर pi by 4 आया है, x की जगह पर pi by 8 आया है. Right? Tan pi by 4 is nothing. Now I am going to replace tan pi by 8 with new variable as y. Taking y as complete tan pi by 8. जैसे ही मुझे y मिलेगा वैसे ही मुझे tan pi by 8 मिल जाएगा. Whatever the value of y is nothing but the value of tan pi by 8. So now I am focusing on y. तो y कैसे आएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक बना रहे हैं. y square plus 2y minus 4 1 is equals to 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं सकती है. सो वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला मेथड डी. सो डिस्क्रिमिनेंट वी आर गोइंग टू फाइंड डी वुड बी b स्क्वायर माइनस 4ac 0. सो दैट मीन्स y विल बी माइनस b बाई 2a ओनली. d वाला पार्ट तो हट ही जाएगा. प्लस माइनस रूट डी लिखना है लिख लो, बट वो 0 है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है. डायरेक्टली यू कैन राइट. तो इट वुड बी माइनस 2 बाई 2 माइनस 2 बाई. कहीं पर कुछ मिस तो हो रहा है. हाँ जी. वो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो c तो -1 है ना, तो 4 प्लस 4 होगा. यस यस यस, ही इज राइट. एक्चुअली में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है. माइनस 4a इज 1, c इज -1. यस. सो इट वुड बी 8. रूट d is root 8 which is nothing but 2 root 2. That means we are going to get the value as y as minus b plus minus 2 root 2 upon 2. So after simplification it would be 1 minus plus minus root 2. अब इसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, नेगेटिव. पाई बाय 8 basically lies in first quadrant, and in first quadrant tan is always positive.
So the final answer would be root 2 minus 1. Minus root 2 minus 1 are, we need to reject this value. Root 2 minus 1 is the positive value. So the y would be root 2 minus 1, that means tan pi by 8 is root 2 minus 1. क्लियर है सबको वैल्यू कैसे आई है? क्वेश्चन कैन बी लाइक cos pi by 8 sin pi by 8, 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हटा दें, नोट कर ले सबने. In the next example we have, this was like 28 in the old book. We have the value 10x with us and x lying in the quadrant pi to 3 pi by 2. वेदांश बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है पाई से 3 पाई बाय 2 का? इतनी मेहनत कर रहे हो. फर्स्ट क्यों है? थर्ड है. पाई टू 3 पाई बाय 2. 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi. This is the complete rotation, so we are here. Pi to 3 pi by 2. बोर्ड पर ध्यान थ्रू आउट द क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन एग्जाम से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये. बोर्ड पर ध्यान. सबसे पहले तो tan x दिया है और जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है वो वैल्यूज किसी और क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, नॉट इन द सेम क्वाड्रेंट. If x is lying between pi to 3 pi by 2, after dividing all sides by 2, my x by 2 is now lying in which quadrant? This is 90. Pi by 4, 45 into 3. x by 2 belongs to second quadrant. pi by 2 से बड़ा, pi by 2 मतलब 90 से बड़ा, और 45 इंटू 3 कर लेते हैं अगर आप, तो ये आपका हो जाएगा 135. तो यहाँ पर है 180 से छोटा, तो x by 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो वैल्यूज हैं वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर द क्वाड्रेंट. साइन x by 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी, cos x by 2 नेगेटिव होगा, tan x by 2 नेगेटिव होगा. पहली चीज तो हम नहीं जानी, वैल्यूज पर अभी नहीं पहुंचे हैं. हमारे पास बच्चों cos 2x के दो फॉर्मूलाज हैं, उनको हम रीराइट कर रहे हैं. बोर्ड पर ध्यान सबका. वी हैव टू आइडेंटिटीज ऑफ cos 2x इन टर्म्स ऑफ साइन एज वेल एज इन cos. cos 2x कैन बी रिटन एज one as 1 minus 2 sin square x and other as, these are the direct identities जो हमें याद हैं, आपको याद होनी चाहिए. लाइक ये है, इन्हीं वैल्यूज से डायरेक्टली आई कैन राइट साइन एक्स एज 1 माइनस कॉस 2x by 2. ये नया आइडेंटिटी है, ये अब एक नई आइडेंटिटी है जो हमने cos 2x से फाइंड की है, ठीक है. cos x को वहीं छोड़ोगे तो आपके पास 1 प्लस cos 2x by 2. किसी को इन दोनों आइडेंटिटीज में कोई प्रॉब्लम? ये cos 2x की हमने लिखी आइडेंटिटीज, वी नो दैट, हम जानते हैं क्योंकि हमने सारी लिस्ट ऑलरेडी बना ली है. cos 2x, sin 2x, ऑल. cos 2x की 4 आइडेंटिटीज होती हैं बेटा जी, उन चारों में से ये 2 थी. इनिशियल सबसे पहली cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x थी, याद आया? तो उन्हीं से हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं sin x और cos x. इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही आइडेंटिटी यूज होती है. रीजन है ये दोनों आइडेंटिटीज सिंगल वैल्यू से, जैसे कि मुझे, अब देखो बोर्ड पर ध्यान, अगर मुझे ये आइडेंटिटी पता है ये तो sin x की है, अब आप बोलोगे मैम हमें तो sin x by 2 फाइंड करना है. ठीक है, आप इस एंगल को x by 2 लिखो, आप इस एंगल को x by 2 लिख दो. अगर मैं इसे x by 2 करूंगी, ये डबल है, तो ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैम ये रूट क्यों होना चाहिए? रूट 1 माइनस cos 2x by 2. हाँ
यस रूट में सो रहा है, दोनों में रूट होगा। दोनों में रूट होगा, यस यस रूट में सो रहा है मेरा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पर, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ही इज राइट, रूट में सोआ है, सो सॉरी, रूट में सोआ है विद प्लस माइनस साइन, थैंक यू फॉर द करेक्शन, रूट में सोआ था मेरा, आई होप आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पर भी क्या मैं ये लिख सकती हूँ, अगर मेरा ये एंगल x है तो ये इसका डबल है, अगर ये x/2 है तो डबल क्या है x cos x, तो यहाँ से cos x/2 कितना आएगा प्लस माइनस 1 प्लस cos x/2। आई होप ये आइडेंटिटी क्लियर है सबको। अब मेरे को सिर्फ cos x की वैल्यू चाहिए, tan x दिया है, tan x से cos x आ सकता है, वो जो क्वेश्चन है ना गिवन, वो cos x sin x कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली फाइंडिंग के लिए आपको यही आएगा, हर बार यही फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो हर बार अब आप बोलेंगे मैम कॉट तो बताया नहीं आपने, सॉरी टैन तो बताया नहीं, तो जब साइन आएगा कॉस आएगा उनको डिवाइड कर लेना, टैन आ जाएगा, ठीक। सो अब मेरा यहाँ पर जो काम है अल्टीमेटली cos x को फाइंड करने का है, तो cos x निकालते हैं। नाउ एज tan x इज, इसको फर्स्ट बोल देंगे बच्चों, ठीक है, ये यूज करेंगे हम फिर से, एज tan x इज 3/4, सो ट्राइंगुलर मेथड यूज कर लीजिए, परपेंडिकुलर बेस बनाकर 4k 5k, सो cos x वुड बी, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम ऐसे, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, x वॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस होगा, तो cos x विल बी -4/5। आई होप cos x की वैल्यू सबको क्लियर है, cos x। अब हम इस वैल्यू को 1 में प्लेस करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ cos x इन फर्स्ट। यस हरीश, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट sin x/2 इज, अब बच्चों आप बताओ निशिका, मैंने प्लस माइनस लिखा था, नाउ यू नीड टू फाइनलाइज विच साइन वी नीड टू टेक, प्लस और माइनस, बताओ sin x/2 में प्लस लेंगे माइनस लेंगे, हमने बात की थी सबसे पहले sin x/2 पॉजिटिव नेगेटिव बताया था ना, तो बताओ x/2 कौन से क्वाड्रेंट में था, तो साइन, यस सेकेंड में था, तो पॉजिटिव हम कंसिडर करेंगे, प्लस या माइनस में से कोई एक ही पिक होगी बच्चों। नाउ यू नीड टू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ cos x, सो 5 + 4 9, बट इसमें x की वैल्यू तो पता होना चाहिए, so finally it would be 3√10 and after rationalizing 3√10/10। हम इसमें तो x की वैल्यू तो x कैसे 37 होगी, x, वो x जो डिग्री होगा cos x में, वो x तो 37 डिग्री, वो मैं बात करूंगी आपसे कैसे निकाला है, cos x/2, ये हमारा cos x/2 नेगेटिव होगा, फाइव माइनस 1 1/10, माइनस में चल रहा है तो 1/√10, और रैशनलाइज करने के बाद -√10/10, एंड फाइनली tan x/2, अभी 1/10 होगा या फिर 2/5 होगा, क्या बेटे, इसके अंदर रूट से 1/5 आएगा, 1/5/2, तो उसको 2/5 होगा या फिर बेटे 1/5, 5 2 के पास चला जाएगा, ये भी ठीक नहीं, यही ठीक है, ऐसे ही होता है, डिवाइड कर लीजिए दोनों को, sin x/2 ओवर cos x/2 -3। आई होप सबको क्लियर है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जब भी आता है, फिर से समझा देते हैं, दोबारा से सुन लीजिए, नहीं लिखिए आप, फिर से सुनेंगे और सुनते सुनते लिखेंगे, सब बच्चे दोबारा से एक बार सुनेंगे अच्छे से।
10x आपको दिया हुआ है और x आपका बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, x आपका बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको फाइंड करनी है वैल्यू sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 की। क्वेश्चन इज ऑलवेज लाइक इन द सेम वे, बट इंस्टेड ऑफ 10x we can have any other trigonometric ratio, but question is always is to find like sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2. So first of all we need to check in which quadrant x by 2 lies. तो x आपके पास लाई कर रहा था पाई से 3 पाई by 2. Dividing all sides by 2, we just come to know कि हमारा x by 2 कौन से quadrant में लाई कर रहा है, second quadrant में, because pi by 2 is 90 and 3 pi by 2 is nothing but 135. हमने solve करके check कर लिया था। So first से हम थर्ड से हम x by 2 से मूव करें सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक क्लियर? As x by 2 is in second quadrant, so value of sin x by 2 must be positive क्योंकि सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, others 2 will be negative only. Now we come to the process कि इनको फाइंड कैसे करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, cos 2x के दो फॉर्मूला, 4 फॉर्मूलाज में से 2 यूज हो रहे हैं, जिसमें sin x और cos x आया था। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अलाउ है, बट डायरेक्टली बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। तो आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो ये हमारा पहला इनिशियल स्टेप है। साइन एक्स मैंने लिया, स्क्वायर था तो प्लस माइनस रूट जनरेट हुआ इन साइन एज वेल एज इन कॉस, बट आई नीड टू फाइंड साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। तो एंगल को एक्स बाई 2 से रिप्लेस करेंगे, दिस विल बी एक्स ओनली, डबल एंगल है। क्लियर? सो आफ्टर लाइक हैविंग अ लुक ऑफ दिस फॉर्मूला, so that means I need to find cos x with the help of tan x. So हमारे पास triangular method है, triangular method से perpendicular hypotenuse से perpendicular base से 5 के hypotenuse generate हुआ, cos x minus 4 by 5. Why we are taking as negative? Because x is lying in the third quadrant. तो quadrants का बड़ा ध्यान रखना है। थर्ड में x in third, x by 2 in second. Here we are finding cos x, not cos x by 2. So cos x lying in the third quadrant, that's why the value is negative. बच्चे बहुत जल्दबाजी में से 4 by 5 लिख देते हैं। 4 by 5 लिखने से गलत हो जाएगा। बोलिए, क्या समझ नहीं आ रहा है? इतना वियर्ड से फेस क्यों बना रहे हो? बताओ, नहीं समझ आ रहा है तो। cos x आ गया है, दोनों इस वैल्यू को दोनों आइडेंटिटीज के अंदर हमने प्लेस कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। क्लियर? कोई स्टेप नहीं समझ आया फिर से पूछ लेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो, गिविंग ए मिनट, जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। नहीं, फिर सब बच्चों को नोटबुक और पेन लाने की जरूरत नहीं है, फोन लाएं, नोट क्लिक करें, घर जाएं, सारा क्लिक कर लें, समझ तो आ ही जाता है सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 29 एज पर ओल्ड बुक। ये सारे एग्जाम्पल एक एक करके इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, और बच्चे इन्हें रटते हैं तो समझेंगे और दोबारा जाके करेंगे तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते टाइम पर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 29th एग्जाम्पल करेंगे, पहले देखते हैं। उसमें हमने एक्स वाले 37 डाल के सॉल्व किए। बेटे बाद में करेंगे बात आपसे इस चीज़ पर, ठीक है? 2 मिनट दे दीजिए क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 ये सेम क्वेश्चन साइन स्क्वायर के साथ भी आता है। सेम क्वेश्चन सेम आंसर राइट पर होता है। लेफ्ट और राइट साइड 3 पर जाना है आपको। सो मैं बता रही हूँ कि सेम क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 साइन स्क्वायर नहीं 3 है, सॉरी 3/2 है। थैंक यू। बोर्ड पर ध्यान सबका 1 मिनट के लिए, 1 मिनट सब बोर्ड पर।
कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला हमें पता चला है अभी कॉस 2x वाले फॉर्मूले से, कॉस 2x का फॉर्मूला था ना, तो उससे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा 1 प्लस कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स आता है 1 माइनस कॉस 2x, यही था ना। तो नीचे ले लेते हैं, ये फॉर्मूला भी करा था, स्क्वायर हटा था रूट आया था, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब बोर्ड पर ध्यान, अगर ये क्वेश्चन कॉस स्क्वायर है तो ये वाली आइडेंटिटी, अगर सेम क्वेश्चन साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम इस क्वेश्चन में ये दोनों ही आइडेंटिटी लिख रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे। बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए। ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको मैंने लिखा 1 प्लस, दोस्तों एंगल का डबल होता है, ये सबको समझ आया स्टेप। इसमें भी जब मैं एंगल का डबल करूंगी तो 2 के साथ x प्लस पाई बाय 3 लिखूंगी। इज दिस स्टेप क्लियर? एंगल का डबल कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी यूज कर रही हूं मैं। 1/2 1 प्लस कॉस 2 x माइनस पाई बाय 3। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए। इन सब का अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा, 3 आएगा cos 2x। बहुत इजी है ये, थोड़ा सा फर्स्ट गो में, मतलब पहली बार जब मैं कर रही हूँ या आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट सेकेंड बार में जो बच्चा है बड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही आइडेंटिटी है जो हमने यूज करी, यही। अब जो आइडेंटिटी यूज होती है वो तो आपको आती है, cos a प्लस cos b की। cos a प्लस, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये कट जाएगा, पता है आपका आंसर 3/2 है ना, ये cos 2x इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन से जो आएगा उससे कैंसिल होने वाला है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत इजी। 3 मैम जैसे हम आपको एक फॉर्मूला पता है cos a प्लस b, हाँ वो भी लगा सकते हैं पूरा पूरा, cos a cos b हो जाएगा ये 2 cos a cos b होगा। बेसिकली। आपके पास 2 cos a cos b जो है वो होता है cos a प्लस b, cos a cos इसका होता है cos a प्लस b। अच्छा मान लीजिए बच्चा भूल गया, क्या भूल गया? आइडेंटिटी भूल गया ये वाली, क्योंकि ये आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कोई नहीं, आपको cos a प्लस b की आइडेंटिटी तो याद है, वो लगा लेना, cos a माइनस b की लगा लेना, कैंसिलेशन के बाद यही बचेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे होगा। ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यूजिंग दिस। बोर्ड पर ध्यान, 2 लगा रहे हैं इसको, ये गिवन है, ऐड करेंगे तो आपके पास पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कैंसिल होगा, 4x क्या बचेगा? मैम cos 2x और 2 पाई बाय 3 जो उसकी फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ बेटे ऐड कर लिया, फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? ये फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रही है, ये हमारे पास है, cos a cos b लिख रहे हैं, 2 cos a cos b, हाँ तो 2 cos a cos b लिख रहे हैं, ये a प्लस b, 2x और 2 पाई बाय 3, हाँ 2x और 2 पाई बाय 3। एक सेकेंड मैंने आइडेंटिटी गलत लिख दिया, एक सेकेंड आइडेंटिटी दूसरी लिखते हैं। a प्लस बी बाई 2, मैंने दूसरी आइडेंटिटी, आई एम सो सॉरी बच्चों, दूसरी आइडेंटिटी थी वो, a माइनस बी बाई 2, यहाँ ये लगा लो, वो भी लग सकती है, उसमें आपको ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेंगी, बट मैंने डायरेक्टली दे दिया। ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो अब लगाइए 2 cos a प्लस b, 4x आएगा अपॉन 2, कैंसिलेशन के बाद 2x, cos a माइनस b, ये और ये ऐड करेंगे, लेकिन सॉरी माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगा ये cos माइनस में आएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा वो, 2 पाई बाय 3। हाँ वही तो सेम फॉर्मूला लग रहा था। गलत बता रहे हो? हाँ सच। एक सेकेंड बेटे, एक सेकेंड, मैं आपकी बात समझ गई, आप लगा लो उसको, मैं तो बस चेक कर रही हूँ आपने माइनस कैसे करा है। 2 पाई बाय 3 माइनस 2x प्लस 2 पाई बाय 3 बाय 2, आप बाय 2 नहीं बोल रहे हैं,
बाय 2 बोलेंगे तो ये आपका हाँ 2π/3 आएगा। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले से कर रही हूँ, आप वो फॉर्मूले को लगाओगे तो टाइम लगेगा, एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। 1/2 cos 2x cos 2x रेगुलेटर से करो, हाँ cos 2x, इसको हम ब्रेक करेंगे पाई माइनस ये पाई प्लस π/3। समझ आया सबको ये? cos पाई प्लस π/3 वैल्यू बताओ। बेटे कन्वर्जन कर दिए, कन्वर्जन के बाद क्या आएगा? माइनस cos π/3। तो वो तो cos π/3 नहीं होना चाहिए भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है। 4π/3 नहीं होगा ये? कौन? वही वाला बाय 2 भी तो होगा। माइनस होना चाहिए ना। एक सेकेंड, ओके हाँ ये बोल, ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहा आप, बीच में माइनस आएगा। पाई माइनस π/3 तो अब ठीक है, cos सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना। सेकंड हो गया बेटा। अब पाई में हो ना, माइनस में पीछे आ गए, पहले प्लस लिखा था मैंने तब मैं थर्ड बोल रही थी, अभी माइनस कर दिया, अभी सेकंड में आप करेक्ट है। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, 2 cos 2x माइनस cos π/3 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और cos π/3 हाफ होता है। क्या होता है? cos π/3 आपका हाफ होता है, तो ये हो गया 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x माइनस हाफ। अब cos 2x भी कट जाएगा, देन वी लेफ्ट विथ 3/2 ओनली। आई होप सबको क्लियर है ये। वो 2x plus 2π/3 के बाद का क्या हुआ? 2 इसको ब्रेक कराएं क्योंकि लगा गया वो। ये आइडेंटिटी लगी है, a प्लस b/2 सब लगाए, cos 2π/3 को ब्रेक कराए, उसके बाद माइनस cos π/3 आए, माइनस cos π/3 माइनस हाफ होगा, माइनस cos 2x प्लस cos 2x कैंसिल होगा, बी जस्ट लेफ्ट विथ 3/2। ये आपका RHS है। कोई डाउट यहाँ तक?